मणिपुरी को भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आसाम भारत का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा, ये भी हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं। मणिपुरी लोगों का मन में ये इच्छा था बहुत दिन से, हम समय देख रहा था, अभी समय आ गया और साथ साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर दिया हमारा मणिपुरी भाई बहन लोगों के लिए। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? और एक बार भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भात নোখোৱাৰ পিছতো ইমান শক্তি আছে না, আর ভাত খালে কি হবে? এটা ভালো লাগছে আজকে লক্ষ্মীপুরে অতটা ভাল কাজ হয়েছে, ভালো লাগছে কি না? ভালো লাগছে তো? তাহলে কৌশিকের জন্য একটা বড় হাত চাপড়, বড় ক্ল্যাপ, ঠিক আছে? আজি রাতিপুৱা আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত গৈছিলো। 260 crores rupees খরচ কৰি আমি খুব ধুনিয়া বরাকবাসীর জন্য একটা ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করেছি। সকালে ওইটার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। স্টেট অফ আর্ট মেশিন, লাইনাক, কোবাল থেরাপি, ব্রেকি থেরাপি, ইটস এ ইউনিক হসপিটাল। এতিয়া কাছাৰৰ মানুহে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নালাগে, সব ট্রিটমেন্ট এখন শিলচর মেডিকেল কলেজে উপলব্ধ হবে। অত্যন্ত বড় হসপিটাল, ভালো হসপিটাল। শিলচৰত 178 crore rupees খরচ কৰি আমি ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমৰো ইনোগ্রেট কৰিলো। কৰিমগঞ্জলৈকে গলো, রামকৃষ্ণ নগৰত খুব ধুনিয়া এটা মেডিকেল কলেজ নির্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উইথ 676 crores, 670 কোটি টাকা। মেডিকেল কলেজ হবে বরাকের সেকেন্ড মেডিকেল হসপিটাল। শিলচর মেডিকেল কলেজ 55 ইয়ার্স আগত হৈছিল আৰু তাৰ মাজত বরাকত নেক্সট হসপিটাল হোৱা নাছিল। আজি বরাক ভ্যালিৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন যে বরাক উপত্যকাত আজি সেকেন্ড মেডিকেল কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে গৈ আছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি লক্ষীপুৰৰ বাবে এটা খুব ভাল দিন। লক্ষীপুৰ মহকুমাৰ সদৰ, সাব ডিভিজনাল হেডকোয়ার্টার, কিন্তু আমার কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া হেলথ মিনিষ্টার লক্ষীপুরত দিছে কি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। ওর জন্য একটা বড় ক্লাস, ঠিক আছে? কেশৱ মহন্তৰ জন্য আজি আমি ইয়াতে এই খেলপথাৰতে লক্ষীপুরত আমি এখন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নির্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি 127 কোটি টকা এই কামৰ কাৰণে আমি স্যাংশন কৰিছো কি খুব সোনকালে হসপিটাল হৈ যাব। কাছাৰত কেবিনেট হৈছিল, কেবিনেটত ডিসিশন হৈছিল যে এখন নতুন গভর্নমেন্ট কলেজ আমি লক্ষীপুৰত বনাম, এখন নতুন গভর্নমেন্ট কলেজ আমি ধলাইত বনাম। আজি ইয়াৰ পৰাই আমি দুইখন কলেজৰ ফাউন্ডেশন কৰিছো। 35 crores, 35 crores। আর্টস হব, সায়েন্স হব, কমার্স হব, গভর্নমেন্ট কলেজ হব, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কলেজ আমার লক্ষীপুর আর ধলাইত দুখন দুখন কলেজ আজি ইয়াৰ পৰা আমি শুভ উদ্বোধন তার কাজ আমি শুরু করেছি। আমার লক্ষীপুর আর ধলাই সমষ্টি আমি দুটা ডাঙৰ ৰাস্তাৰ কাম হাতত লৈছো। সেই ৰাস্তা কেইটা হৈছে আইজল টু দুৱাৰবন পথ, নেক্সট হৈছে আইৰংমাৰা চাহ বাগিচা টু বৰখালা টি গাৰ্ডেন, আৰু নেক্সট হৈছে অঞ্জুৰ টু অঞ্জুৰ বিনাকান্দি
ফুলেৰতল ৰোড, এই তিনিটা ৰাস্তাৰ বাবে আসাম মালা 2 আঁচনিৰ অধীনত 132 কোটি টাকা স্যাংশন দিয়া হয়েছে। এখন কাজ শুরু হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীপুরের এসডিও অফিস, লক্ষ্মীপুরের কতগুলা ইরিগেশন প্রকল্প, পানি যোগান প্রকল্প সব মিলিয়া টোটেল আজি 2000 কোটি টাকার প্রজেক্ট বরাক ভেলির কারণে ইয়াতে আজি আমি আরম্ভ কৰিছো। ইমান ডাঙৰ কাম বরাক ভেলির জীবনত কেতিয়াও হোৱা নাই। মইতো আজি 20 বছর एमएलए आसु, अभी तक हम 20 साल मेरा एमएलए हो चुका है। मैंने कभी नहीं देखा था कि बराक वैली के लिए 2000 करोड़ का काम का शुरुआत एक ही दिन में एक ही मंथ से, और ये तो शुरुआत है। এতিয়া আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছো যে আমাৰ বৰাক ভেলিৰ হাই স্কুল বিলাক, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বরাক ভেলিত আমি অলমোস্ট 30 নতুন আমি হাই স্কুলৰ বিল্ডিং বনাম। একটা হাই স্কুল বিল্ডিঙত আমি 8 কোটি টাকাকৈ খৰচ কৰিম। 8 কোটি টাকা খরচা হবে এক স্কুলের জন্য, হাই স্কুলের জন্য। কালি বা পৰহিৰ পিছত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব। অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র, মডেল অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র, জল জীবন মিশন, আজি বরাক ভেলিত যিবিলাক কাম আমি আৰম্ভ কৰিছো, এই কাম আগত কোনেও চিন্তাও কৰা নাছিল। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ 52খন এম্বুলেন্স টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণেও আজি আমি ইয়াতে দিছো, যে 52খন টি ষ্টেটৰ কাৰণে 52খন এম্বুলেন্সো আজি আমি ইয়াতে গতাই দিছো বাগানৰ মেনেজাৰ সকলক, যে বাগানৰ শ্ৰমিক সকলক আমি যাতে ভাল কৰি এই কাম, এই মেডিকেল ফেসিলিটি আমি দিব পাৰো। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিত যিমান কাম হৈছে, বৰাক ভেলিত ইমান কাম হৈছে, বৰাক ভেলিত যিমান কাম হৈছে, কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰ জিলাত ইমান কাম হৈছে। আজি অসমত কোনো এটা জায়গা নাই য'ত ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই। আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত এই কামবোৰ হৈছে? 2 বছৰ 2.5 বছৰৰ ভিতৰত আজি এই গোটেই কামবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি কৰিছো, আমি আগুৱাই লৈ গৈছো। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। আজি বৰাক ভেলিৰ মানুহক মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে 2026 চনৰ আগতে আমি শিলচৰৰ পৰা হাফলঙেদি যোৱা আমি নেশ্যনেল হাইৱে আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিম। এইটো মোদী গ্যাৰেণ্টি, 100% মোদী গ্যাৰেণ্টি। আজি আপোনালোকে গলে দেখিব দিনে ৰাতিয়ে কাম হৈ আছে। एवरी डे कंस्ट्रक्शन, एकदम धम धूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई बाधा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सब लोगों ने हम लोग को कोऑपरेट कर रहा है। और ये मोदी जी का गारंटी है कि 2026 सन का पहले हम लोग हाफलंग होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगा। ये हम लोग का गारंटी है, मोदी जी का गारंटी है। इतना बड़ा काम बराक वैली में कभी नहीं हुआ। आप लोग को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आज जो हम लोग इनॉग्रेट किया है कासार कैंसर हॉस्पिटल, आप लोगों को देखना चाहिए। किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान को बोलूंगा कि किसी को कैंसर ना हो, लेकिन इतना बढ़िया मशीन, इतना बढ़िया बिल्डिंग बराक वैली में और दूसरा कभी नहीं हुआ था। इससे ज्यादा बढ़िया हॉस्पिटल आगे बना ही नहीं था। अभी मैंने करीमगंज में हमारा नया मेडिकल कॉलेज का मैंने एक फिल्म दिखाया था। वो मेडिकल कॉलेज है कि फिल्म स्टूडियो है, दिखाई कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता है। इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। और मेरा तो इतना भी मन है, अगर भगवान हमें शक्ति दे तो बराक वैली में 2 के जगह में और एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी मेरा मन है। आज लखीमपुर में देखिए कितना काम हो गया।
जब मैंने यहाँ पहला बार आया था, कौशिक जी मुझको बोला था हॉस्पिटल दीजिए, सब डिविजनल हेडक्वार्टर दीजिए, लेकिन साथ में कॉलेज भी आप लोग को तोहफा में मिल गया, साथ में आप लोगों को और कितना आसाम माला का रास्ते वगैरह कितना मिल चुका है। एक शब्द को बोलते गले एखन विकासर बन्या रयेछे। पहले तो ब्रह्मपुत्र का फ्लड था, बराक का फ्लड था, अभी डेवलपमेंट का फ्लड हो रहा है देश में। हमारा जीवन में इतना बढ़िया समय हमने कभी नहीं देखा था। और सब कुछ काम क्यों हो रहा है? एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सारा काम हो रहा है। और राम मंदिर तो हो ही गया प्राण प्रतिष्ठा। जाना है कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करना? किसको किसको जाना है हाथ उठाइए। सब कौशिक सबको फ्री लेके जाएगा, ठीक है। इस साल हम लोग 50,000 यात्री को लेके जाएगा अयोध्या का राम मंदिर में, सरकारी खर्चा में। लखीमपुर का तो 1-2 जाएगा ही जाएगा। राम मंदिर देखने का मन है कि नहीं सबका? किसका किसका नहीं है हाथ उठाइए। किसका किसका मन इच्छा है वो हाथ उठाइए अभी। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? और एक बार है कि नहीं? तो इसलिए ये जो आज डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना, अगर नरेंद्र मोदी अगर नहीं 400 पार करके प्रधानमंत्री बनना ही है, उसका बाद असम का और बहुत बड़ा विकास होगा। अभी कौशिक जी मुझको बोल रहा था कि ये जगह में बढ़िया स्टेडियम बना दीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम। तो मैं बोला थोड़ा इंतजार करो, मोदी जी को तीसरा बार शपथ लेने दो, फिर उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज हम लोग का हिम्मत बुलंद है। कल आप लोगों ने कैबिनेट में सुना है, असम के लिए 27,000 करोड़ रुपया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। 30,000 लोगों का नियुक्ति होगा। इतना बड़ा काम असम कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतना बड़ा काम हुआ। और आज देखिए, आज 3 साल आप लोग देखिए, कोई बड़ा ब्रह्मपुत्र का बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई बंगाली असमिया का क्लैश नहीं है, हिंदी भाषी बंगाली असमिया का क्लैश नहीं है। अभी हम लोग बहुत शांति से मणिपुरी को भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मणिपुरी लोगों का मन में ये इच्छा था बहुत दिन से, हम समय देख रहा था, अभी समय आ गया और साथ साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर दिया हमारा मणिपुरी भाई बहन लोगों के लिए। इस बार कौशिक को वोट तो डालेगा ना मणिपुरी लोग? डालेगा कि नहीं डालेगा? डालना तो सही है। इसलिए कौशिक ने मुझको बोलते ही रहा कि दादा कीजिए कीजिए कीजिए। कौशिक के लिए मोटा मोटी ये काम हुआ है। तो एक तरफ आप लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास है बन्ना, और साथ साथ में गरीबों का खिलाफ नहीं, पॉवर्टी का खिलाफ कितना बड़ा काम शुरू हुआ है असम में। चुनाव का पहले हम लोग चर्चा किया था कि 1 लाख सरकारी नियुक्ति दिया जाएगा, तो लोगों ने तो हमको विश्वास ही नहीं किया, और हमारा पार्टी का लोग ही मुझको विश्वास नहीं किया कि कैसे 1 लाख नौकरी संभव होगा। लेकिन आज हमने करके दिखाया, और नौकरी ही नहीं दिया, साथ में दलाल लोगों को भी शमशान में भेज दिया। चलो तुम लोग का कुछ काम नहीं है, असम में दलाली नहीं होगा। तो अभी 97,000 नौकरी हो गया। फिर मेरा तो काम खत्म 3,000 देने से। लेकिन फिर लड़का लड़के लोग पूछते दादा पुलिस का इंटरव्यू कब निकालेगा, कब निकालेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने और 25,000 नौकरी का इंटरव्यू खोल दिया है। चलो और काम करो, और नौकरी भी दूंगा,
और काम करो। असम में सब लोग स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, एक अच्छा विकास का माहौल बनना चाहिए। असम एक भालो परिवेश, मिलाप्रीतिर परिवेश, समन्वयर परिवेश। आज आप लोग देखिए असम को कितना खूबसूरत लगता है। अभी कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई गरीबों का सुनवाई होता है। अभी तो इतना बढ़िया एक स्थिति हमारा असम में बन चुका है। भाइयों और बहनों, हम जब अरुणोदय आसनी का बात किया था, स्कीम का बात किया था, तो लोग बोला था नहीं, चुनाव का बाद ये सब बंद हो जाएगा। चुनाव का पहले कितना अरुणोदय था? 18 लाख। बंद तो नहीं हुआ, अभी अरुणोदय 27 लाख बन गया। और इस बार हमने और 3 लाख अरुणोदय अनाउंस किया हो, और 3 लाख मान रहे अरुणोदय का। लेकिन मेरा मन है कि जिसका घर में रेशन कार्ड है, हर घर में एक एक अरुणोदय भी होना चाहिए। मतलब किसका अरुणोदय है? रेशन कार्ड जिसका घर में है। रेशन कार्ड किसका है? जिसका घर में अरुणोदय है। और साथ साथ में रेशन कार्ड भी होगा, अरुणोदय भी होगा, साथ साथ में प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत भी होगा, मुख्यमंत्री का आयुष्मान असम भी होगा। 5 लाख रुपया तक हमारा ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। अगर ऐसा ही 2 साल हम लोग को और 10 साल मिल जाते हैं ना, असम भारत का नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा। ये भी हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं। अगर यही 2 साल और 10 साल चलते हैं तो तब तक हमारा कसार में नया एयरपोर्ट भी बन जाएगा, हफलम का रास्ता भी खुल जाएगा, स्कूल डॉन बॉस्को सेंट मेरी जैसा हो जाएगा, आंगनबाड़ी कैंप बढ़िया हो जाएगा, सब लोगों का घर में इंश्योरेंस हो जाएगा, अरुणोदय हो जाएगा, रेशन कार्ड हो जाएगा, महिला लोग लाखपति बन जाएगा। इतना काम पूरा हम लोग कर सकूंगा अगर ऐसा ही बढ़िया 2 साल कम से कम आगे और हम लोग को थोड़े दिन मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, ये हमारा विकास का राजनीति चलते रहे, असम शांति में रहे, हमारा बराक ब्रह्मपुत्र का बीच में भाईचारा बने रहे, हमारा बंगाली स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, असमी स्पीकिंग, मणिपुरी स्पीकिंग सारे लोगों का बीच में भाईचारा बने रहे। इसीलिए हम लोगों का माइंडसेट सबका पॉजिटिव होना चाहिए। जो लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है वही देश विश्व गुरु बन सकता है। मोदी जी हमारा देश को पॉजिटिव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेसी लोगों ने हमारा देश को निगेटिव करवा दिया था कि कुछ संभव नहीं, नौकरी लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, सरकारी स्कीम लेना है तो नौकरशाही का पास जाना पड़ेगा, कोई डेवलपमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन मोदी जी ने आज हम सब लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव किया है, और ये पॉजिटिव माइंडसेट को लेके हमको आगे जाना है और असम को हमारा देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। আজি এটা সুন্দৰ দিন বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে, আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক মই বহুত আজিৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বিকাশৰ কাৰণে ভৱিষ্যতেও কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক প্ৰদান কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কেইদিনমান পিছতে ইলেকশ্যন আহিব, মোদীজি আকৌ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আৰু আজি আমি যি কৰিছো তাতকৈ 2-3 গুণ কাম আগত গৈ আমি আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰিম, সেই বিশ্বাসো মোৰ অন্তৰত আছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে ইয়াত এটা ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম লাগে, এটা অডিটৰিয়াম লাগে, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন লাগে লক্ষীপুৰত, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট লাগে, আৰু একটা আমার ইয়াতে সার্কিট হাউস লাগে।
এটা মই দিব নোৱাৰো, লক্ষীপুৰৰ মানুহে এইটো ল'ব লাগিব। কেনেকে ল'ব লাগিব? এই যে MP ইলেকশ্যন আহি আছে তাতে টপা কমলৰ চিনত ভোট দি ল'ব লাগিব। হ'বনে নাই? হ'ব কি নাই? ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, হ'বনে নাই? হবে কি না? সেইটো হৈ গ'লে বাকী হৈ যাব। গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল থাকিলেতো গাড়ী দৌৰি থাকিব, হয়নে নহয়? গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল লাগে, গাড়ীৰ ডিজেল পেট্ৰল হ'লে গাড়ী ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত বৰাক উপত্যকাৰ আটাইকেইজন বিধায়ক উপস্থিত আছে, সাংসদ উপস্থিত আছে। তেখেতসকলৰ যত্নৰ কাৰণে আজি আমি বৰাক উপত্যকাত উন্নয়নৰ এটা নতুন কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, আপোনালোকে সহায় কৰিব। মই যাতে মোৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে মোদীজীৰ আশীৰ্বাদত মই যাতে বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে আৰু কাম কৰিব পাৰোঁ, বৰাক উপত্যকাক আৰু যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। এই দুআষাৰ কৈ মই আপোনালোকক আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটো পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব, আমাৰ সঙ্গে ফিৰ একবাৰ ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে জয় জয় শ্ৰী রাম। নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।